First railway line was constructed from Karachi to Kotri in 1861, I think it was like this. And from Kotri till Multan, the freight used to move by Indus River. Ferries were used, and those ferries were carrying the freight from Kotri, Hyderabad to Multan. And then the second line which was constructed was Multan to Lahore and Delhi, and the traffic was moving like this. It would be interesting for you that even now our bridge branch, railway bridge branch, the assistant engineer bridges is designated as the AFX, assistant ferrying officer, because at that time they were operating the ferry services also for that matter. And in many countries, even now, these ferry services are part of railways like this. So ferries, ships, boats, and rafts, which for any purpose, they used to be part of railway for that purpose. Any questions so far? Silent. Why railways? Why a country should have a railway? The most important thing is that it is 5 times more fuel efficient than roads. That is an established fact. If you want to verify it ever, it's very simple. I mean, it is not only a statement. Just take the economic survey of Pakistan for any years. In that economic survey of Pakistan, you will find that track kilometers, the total freight carried by railway, total freight carried by road. And another figure would be total fuel consumed by railway, total fuel consumed by road. Just divide it, and you will see that the transportation by railway, as far as the fuel consumption is concerned, was 5 times less than road. Fuel means foreign exchange. Fuel means something very precious, and we should try to economize it as far as possible. Still accepted to be the safest mode of transport. It is most suitable for bulk and long haulage. Here, the considerations are JICA. I know you might have heard the name, Japan International Cooperation Agency. They conducted some studies about Pakistan Railways, and their conclusion was that up to, I think, 400 kilometers distance, it is preferable to move the freight by road. And beyond 400 kilometers, it is preferable to move the freight by train. That is a parameter, broad parameter, you can say that, but not necessarily, because why it is so? The question is why it is so. Railway has a serious problem of not having door-to-door service. Railway moves from station to station, and freight has to be brought to the station and taken away from the station. Road service has an advantage over railway, that they can move from door to door. So that is an additional cost. When you carry freight from home, bring it to the station, then take it from the station. And take back to that is an additional cost. So railway, if you move small distance by railway, it sometimes proves expensive. So that is why that there is a parameter as far as freight is concerned. In case of passengers, yes, almost similar analysis, but there are some different categories also. For example, intercity services by rail, they are very popular, very successful. Metros within the cities,
very powerful, very successful, and then long distance overnight journeys by passengers, very comfortable, very safe. For our country, strategic importance. I'm sorry. If you see the structure of railways, organization structure, Khadak Sahab must have explained to you, it is just like army. It was before when the British people made this. It was created just like parallel to army. There is a engineering, there is a CNC, then corps commanders, and then principal officers at their headquarters. Come to railway, it is the general manager, it is the divisional superintendents sitting different places, and then principal officers sitting in the headquarters office, and dual control, technical control by the principal officers, and administrative control by the divisional superintendents. Almost same pattern. The reason was that they used railway for the purpose of their occupation, for war purposes, for strategic purposes. And still, it is important. Even for, I mean, the quickest way of moving the army with their arsenal for long distance is still the railway, and more safe. Then the factor which is new compared to old days is the environment. It is the most environment friendly, least pollution. And these all benefits which I have explained to you are clear from the fact that railway has got a new lease of life in the whole world. In the whole world, the railway is emerging again as a major mode of transport. You talk about any country, European Union have integrated their railways. You will be surprised to know that even country like Spain, which has a broad gauge track, they converted it to standard gauge just to get integrated with the rest countries, rest European countries like this. Freight movement is boundaryless, and China, Russia, name any country, and railway is now coming very fastly upwards. Let us hope that it also happens someday in Pakistan also. So, any question about it? Huh? सर स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं तो उसमें एक एस्पेक्ट इसकी रिलायबिलिटी का भी आना चाहिए. क्या रेलवे जो मतलब रोड्स की ट्रैफिक है उससे ज़्यादा रिलायबल है? इसके तो ट्रेन की तरह एक भी आप पिछले टाइम खराब नहीं है. देखें, आपका क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है. इसमें यह है कि जब लेट अस से कि एक सर्टन वॉल्यूम ऑफ मूवमेंट आपने करनी है पर्सनल की, या क्योंकि लेट से मैं कहता हूँ कि 2000 आदमी आपने लेके जाने, सिपाही लेके जाने हैं. आप ट्रेन में लेके जाएंगे तो शायद एक ट्रेन में ले जाएंगे. जब आप रोड पे लेके जाएंगे तो उसके लिए 100 बसें चाहिए होंगी. 100 बसें चलेंगी तो यू कैन इमेजिन कि ट्रैफिक की हालत रोड पे क्या होगी. एक ट्रेन को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू 100 बसों को प्रोटेक्ट करना रोड पे, या 100 ट्रकों को प्रोटेक्ट करना रोड पे फॉर दैट मैटर. सो डेफिनेटली इट हैज़ स्टिल एन इम्पोर्टेंस. ये अलग बात है कि कल को एटॉमिक वार होगी तो इसकी कोई हैसियत नहीं है, या वार अब दिन ब दिन ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज हो जा रही है तो मुमकिन है चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट ना रहें, बट स्टिल अप टिल नाउ इट इज़ देयर. Army owns its freight wagons, its passenger coaches,
and when they want to move, they use those wagons and coaches for their purpose. It is still there. All the cantonments have rail links with the Pakistan Railway Network, and whatsoever arsenal they move by train mostly sometimes. You can say that dependence is not that much which was there, let us say 30 years back or 40 years back. It has definitely reduced, but it is still there. Right? Satisfied? May I add? Yeah. Even your strategic assets, some of them have to move by rail. Yes. It is actually more feasible to safeguard one train as compared to 40, 50, 60 trucks, etc. And we will know when in the service that there are very special arrangements when such movements take place. All sorts of protections are adopted, and there are laid down procedures and systems, how to move these special moves and all that. So now we come to this topic. This is things which I'm now spelling at the moment, but in more detail. If you people have some studies, some of things you can say that, and we can comment then. Track geometry, type of gauge, element of track, alignment, and curves. This is one thing, gauge. If you say what is the most important parameter of a railway, it is a gauge. Small thing, but it is all. What is a gauge? This is, I think, everybody, you might be distance between the inner sides of the two rails. So that is the gauge. Now, when we conceive a gauge, think about it that what things are depending upon the gauge. All the rolling stock, freight wagons, locomotives, passenger coaches, and any machinery which is moving on the track has to have that gauge, has to match that gauge. If you change the gauge by 1 inch, all that becomes redundant. Everything becomes redundant. Number one. Number two, structures, embankment size, bridges size, distances from the stations, signal, many things that change with the change of gauge. Size of sleeper changes with the gauge. Size of the ballast section changes with the gauge. So gauge is one thing which drastically changes everything. It is such an important thing that if you read the history, and I think you must read it, it is available. There's a book, 100 Years of Pakistan Railways, and it is there in it, that when the British government decided to construct a railway in India, the issue was deliberated in the British Parliament. British Parliament, such an important thing which was discussed in the British Parliament at what should be the gauge in India. There were two opinions and accordingly two lobbies for that matter. One opinion was that there should be standard gauge, which is there in UK. And second opinion was that it should be a broader gauge. And the broader gauge, the reason of recommending broader gauge was that in their view, India, there are strong winds blowing in India and the train will overturn with the winds, fast winds. But that lobby was more strong and they were able to approve their decision, and that is why a broad gauge was constructed in India. Later it is written
that this decision later proved wrong. It was not correct. Standard gauge was equally safe and etc. So gauge is that important thing. I mean, when we talk about railway, gauge is the first thing to know, that what is the gauge of railway. Then, any question? Yeah. ये हम गेज को एक्यूरेट किस तरह मेजर कर सकते हैं फील्ड में कि हमें इतना गेज है 200 किलोमीटर डिस्टेंस पे इतना है ये आप हमारे पाकिस्तान रेलवे में किस तरह मेजर करते हैं? देखिए, इसके लिए बड़े सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और एक मैं आपको बात बता दूं कि गेज जब हम कहते हैं ना 5 फुट 6 इंच या 1676 मिलीमीटर, एग्जैक्टली यूनिफॉर्मली कभी नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। तो सर्टन वेरिएशंस आर अलाउड, कि अगर विद इन दैट वेरिएशन है, फॉर एग्जांपल अगर इंचों में बात करें तो जो मुझे याद पड़ता है कि +3/8 इंच -1/8 इंच, दिस इज व्हाट आई रिमेंबर। अगर इस हद तक गेज स्लैक है या टाइट है, इट इज़ एक्सेप्टेबल, राइट। बट एंड अनदर थिंग इज दैट, जब आप पढ़ेंगे कि ये अगर एक्सेप्टेबल है तो ये नहीं है कि एक स्लीपर से दूसरे स्लीपर पे गेज इतना चेंज हो जाए, सडन चेंज नहीं पॉसिबल है। इट हैज़ टू बी ग्रेजुअली, ताकि उसकी रनिंग स्मूथ रहे। और हाउ टू मेजर इट, इसके लिए बड़े सिंपल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो फील्ड में जाएंगे आपको तो यू विल सी दैट, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन था आपका। अच्छा, अब ये यहाँ ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने सिर्फ दिखाया इसलिए कि ये व्हील है ट्रेन का, ये तो गेज होगा रेल का। देन दिस डिस्टेंस वाई, दिस इज वी कॉल द व्हीकल गेज। ये नॉर्मल गेज से पाकिस्तान में 3 इंच तकरीबन छोटा होता है, कि अगर हमारा गेज 5 फुट 6 इंच है तो व्हीकल का गेज जो है वो 5 फुट 3 इंच है। तो आमतौर पे जब गेज की हम बात करते हैं तो नॉर्मली ट्रैक गेज की बात करते हैं, एंड व्हील गेज और व्हीकल गेज शुड मैच विद द ट्रैक गेज। हाँ जी प्लीज। देखें, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इस पर आ रहा था लेकिन आपने पूछ लिया। चलिए, बात यह है ना कि आप कंसीव करें पिंडी से लाहौर, एक मिसाल के लिए दे रहा हूँ आपको जस्ट समझने के लिए। इस वक्त ये ब्रॉड गेज है, ठीक है ना। अब आप कहते हैं कि हम इसको गेज बदल देते हैं, हम उसका स्टैंडर्ड गेज कर देते हैं। स्टैंडर्ड गेज एक लफ्ज़ हम बोलते हैं ना, इट इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड। एक तो ये ज़हन में रखें अपने, इसका नाम स्टैंडर्ड है बट इट इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड। हर मुल्क का अपना गेज है और वही स्टैंडर्ड है उस मुल्क का। तो स्टैंडर्ड गेज चूँकि ब्रिटिश ने अडॉप्ट किया और कॉलोनियल टाइम में उन्होंने मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में वही गेज लगाया, तो उसका नाम स्टैंडर्ड गेज हो गया उसका, बट इट इज़ ए नेम। अच्छा, उस तरह बात आते हैं जो उनका क्वेश्चन है कि हम ये करते हैं कि जो पिंडी से लाहौर है ये हम स्टैंडर्ड गेज कर देते हैं, पूरा ट्रैक निकालेंगे, नया ट्रैक डाल देंगे, ठीक है ना। अब जब नया ट्रैक डालेंगे स्टैंडर्ड गेज का, तो सारे स्टेशन यार्ड्स, लाइनें, लूप लाइनें वगैरह वगैरह सब कुछ बदलेगा, उसमें हर चीज़ चेंज हो जाएगी। ब्रिजेस पहले ही बड़े हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चलो ट्रैक छोटा है, उसके ऊपर अकोमोडेट हो जाएगा। नाउ थिंक अबाउट द ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसे होगा? आपकी ट्रेन आ रही है पेशावर से, वो ब्रॉड गेज पे आ रही है, अब पिंडी से आगे वो नहीं जा सकती। आप मुसाफिरों को उतारेंगे या सामान उतारेंगे, नई ट्रेन पे बिठाएंगे, वो आपको लाहौर तक लेके जाएगी। फिर लाहौर में फिर आगे गेज डिफरेंट है, फिर वहाँ उतारेंगे, फिर दोबारा रहेंगे, फिर दूसरी गेज पे जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2,
जो आपके लोकोमोटिव्स हैं, वैगन्स हैं, कोचेस हैं, वो सारी ब्रॉड गेज की हैं। पेशावर और पिंडी के दरमियान उनकी मेंटेनेंस पिंडी में या पेशावर में ब्रॉड गेज की होगी। जब स्टैंडर्ड गेज की कोचेस होंगी वो डिफरेंट होंगी, लोकोमोटिव डिफरेंट होंगे, सारा कुछ डिफरेंट होगा। उसके लिए आपको मेंटेनेंस शेड्स भी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। तो आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। तीसरी जो चीज़ है ना जिसमें सोचने वाली, चूँकि आपके लेवल पर लोगों को सोचना चाहिए, हर काम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसी एक होती है ना विशफुल थिंकिंग, यार अच्छा होता बड़ा स्टैंडर्ड गेज होता, वह क्यों होता, क्या वजह है, व्हाट इज़ द एडवांटेज। हमारी अब पाकिस्तान में ये पाकिस्तान रेलवे में महसूस करेंगे, मतलब फेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे होता ही है कि जब भी कोई नया चेयरमैन, नया मिनिस्टर, ख़ास तौर पे जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो आते हैं तो अचानक उनको ख्याल आता है यार ये तो स्टैंडर्ड गेज होना चाहिए था। हमारा स्टैंडर्ड से मुराद वो लेते हैं कि समथिंग विच इज़ ए स्टैंडर्ड, और वो अचानक कहते हैं नहीं यार लेट अस मेक अ स्टैंडर्ड रेलवे, गेज रेलवे, विदाउट रियलाइजिंग कि इसका मतलब क्या है, वो क्या कह रहे हैं। मतलब दैट प्रैक्टिकली मीन्स मेकिंग अ कंप्लीट न्यू रेलवेज। उनको समझाने में फिर बड़ा टाइम लग जाता है। तो पहले तो आपको समझ, दूसरी बात जो मैं कर रहा था कि ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं। एक तो है कि मुझे पसंद है आप स्टैंडर्ड गेज, ये तो कोई बात नहीं है, देयर हैज़ टू बी सम एडवांटेज। तो इसमें देखें, थिंक अबाउट द कनेक्टिविटी विद द नेबर कंट्रीज। आपके नेबर कौन हैं? इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान। चार। इंडिया में सारा ब्रॉड गेज है, वही जो हमारा गेज है उसको कहते हैं इंडियन गेज है, 5 फुट चेंज, इट इज़ नोन एज इंडियन गेज। चाइना सारा स्टैंडर्ड गेज है, ईरान स्टैंडर्ड गेज है, और अफगानिस्तान में अभी तक फाइनली डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा गेज होगा, बट मेरा ख्याल है कि मोस्ट प्रोबेबली स्टैंडर्ड गेज ही होगा, चूँकि यूरोपियन कंट्रीज अगर वहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड गेज ही करेंगे। अब आज का सिनेरियो ये है कि हम इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, तो कोई मूवमेंट हमारी उनकी होती नहीं है फ्रेट की ख़ास तौर पे। बट थिंग्स हैव टू चेंज समडे। ये दुश्मनी हमेशा तो नहीं रहनी, कभी ना कभी ख़त्म होगी। उनको अकल आएगी या हमें अकल आएगी, किसी को तो आएगी। तो उसके बाद मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस आपका जो होना है वो इंडिया के साथ ही होना है। इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ फ्रेट मूवमेंट टू अदर कंट्रीज आपके थ्रू होनी है। दैट इज़ द बेस्ट सूटेबल रूट फॉर देम टू गो टू ईरान, टू गो टू अफगानिस्तान, टू गो टू चाइना एंड टू गो टू यूरोप आल्सो। अब पाकिस्तान रेलवे प्रैक्टिकली कनेक्टेड है विद यूरोप वाया ईरान। हमने मेरे टेनोर में हमने ट्रेन भी चलाई, फ्रेट ट्रेन फ्रॉम इस्लामाबाद टू अंकारा, और वो ट्रेन 14 दिन में सक्सेसफुली पहुंची वहाँ पे। अब उसमें फिर क्वेश्चन आपका आता ना कि फिर गेज का क्या बना, ये तो ब्रॉड गेज है, तो स्टैंडर्ड गेज है। तो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट ड्यूरिंग लास्ट 40-50 ईयर्स। उसमें गेज की अहमियत अब कुछ कम हो गई है। अब क्या है, अब मोस्टली मूवमेंट होती है थ्रू कंटेनर्स। पहले डेडिकेटेड डब्बे होते थे फ्रेट के, वो पूरा का एक ही चीज़ होती थी, लेकिन अब कंटेनर्स पे मोस्टली मूवमेंट हो रही है। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल जब ईरान में एंटर होते हैं तो उनका पहला स्टेशन है ज़ाहिदान। ज़ाहिदान में अरेंजमेंट है कि प्लेटफॉर्म है, उसके एक साइड पे है स्टैंडर्ड गेज और एक साइड पे है ब्रॉड गेज। इधर से ट्रेन जाती है ब्रॉड गेज में, प्लेटफॉर्म पे चली जाती है। प्लेटफॉर्म पे ट्रेनें खड़ी हैं, वो उसी कंटेनर्स को उठाती हैं, दूसरी तरफ रोलिंग स्टॉक खड़ा होता है स्टैंडर्ड गेज का, उस पर प्लेस कर देती हैं, एंड इट टेक्स 1 to 2 आवर्स। 2 घंटे में आपकी पूरी ट्रेन तैयार होके और चली जाती है, नो इशू। इतने छोटी सी काम के लिए आप पूरे गेज को चेंज करेंगे, अकल की बात नहीं है। फिर ये दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है कि जी ये तो फ्रेट की बात कर रहे हैं, पैसेंजर में क्या होगा।
पैसेंजर कोचेज जब आप पढ़ेंगे ना, तो पैसेंजर कोच जो होती है उसकी जो एक स्ट्रक्चर देखें तो आपको इल्म है बोगी किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, बताएगा मुझे? हाँ, जो नीचे वो जो होता है ना 4 व्हील्स का एक असेंबली होती है, ट्रॉली होती है, ठीक है ना, उसको बोगी कहते हैं, ठीक है ना। बोगी का और जो ऊपर उसके ऊपर हाँ वो जो है कैबिन है, उसका कनेक्शन सिर्फ एक पिन का होता है कि नीचे जो बोगी होती है उसमें एक होल होता है सेंटर में, और उसका जो ऊपर कोच है उसकी पिन होती है। तो 2 बोगियाँ ऐसे हैं, उसके ऊपर वो आके पिन ऐसे प्लेस हो जाती है। तो पैसेंजर में यही होता है एग्जैक्टली जो बात करते हैं ना फ्रेट साइड पे, कि वो दूसरी साइड पे स्टैंडर्ड गेज की आप बोगियाँ खड़ी कर देंगे, और वो रात के वक्त लोग सो रहे हैं ट्रेनों में, क्रेन आएगी आपके उसको उठाएगी, दूसरी तरफ रख देगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप स्टैंडर्ड गेज पे चले जाएंगे। ये होता रहा है दुनिया में, हो रहा है अब। तो ये जी 4 फुट 8.5 इंच। नहीं नहीं वो परफेक्टली सेफ है, ये कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखिए जिस तरह होता है ना कि ऑप्टिमल साइज कहते हैं कि अब उससे बड़ा करें तो फिर वो फालतू हो जाता है उस लिहाज से। तो ये प्रूव हुआ है कि ये ऑप्टिमल साइज स्टैंडर्ड गेज है, इससे हमें बड़ी की ज़रूरत नहीं थी। ये जितनी हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं जो अब तकरीबन 350 किलोमीटर तो नॉर्मल है, इससे ऊपर भी जा रहे हैं, ये सब स्टैंडर्ड गेज पे चल रही हैं। फ्रेट को तो हम हाई स्पीड ना करते हैं ना करना चाहिए, ये तो हम आमतौर पे 70-80 किलोमीटर की स्पीड पे चलाते हैं, और वही इकोनॉमिकल स्पीड है उसके लिए। एडजस्टेबल बोगियाँ बनी है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, बनी है। एडजस्टेबल बोगी नहीं कहते, उसे एडजस्टेबल एक्सल कहते हैं उसको, नीचे एक्सल होता है ना वो एडजस्ट होता है, ये बनी है, वो भी बनी है, और ये जो होता है ना पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स वो भी एडजस्टेबल बने हैं, डिज़ाइन होते रहे हैं। दोनों चीज़ें ट्राई हो चुकी हैं, दोनों चीज़ें सक्सेसफुल थी, इन दैट सेंस सक्सेसफुल मीन्स कि पॉसिबल है। बट ज़्यादा सिंपल जो है ना अरेंजमेंट ये इकोनॉमिकल, उसमें काफ़ी लिमिटेशंस थी, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए वो ज़्यादा फिर उसका चली नहीं, लेकिन है बनी ज़रूर, बिल्कुल ठीक है ना। गेज का स्पीड पे पड़ता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज के दरमियान कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जब हम स्टैंडर्ड गेज से नीचे जाते हैं ना फिर फ़र्क पड़ता है। और गेज की भी जब आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि डिफरेंट गेज फॉर एग्जांपल डिफरेंट इलाकों के लिए सूटेबल है। पहाड़ी इलाके, हिली एरियाज, वहाँ पे ब्रॉड गेज या स्टैंडर्ड गेज बाज़ दफ़ा फिजिबल नहीं रहता, क्योंकि कर्व्स बड़ी शार्प होती हैं। जितना गेज छोटा होगा उतनी कर्व ज़्यादा शार्प कर सकते हैं, जितना गेज बड़ा होगा उतनी कर्व शार्प हम नहीं कर सकते। हमारे ब्रॉड गेज की लिमिटेशन है कि हम 10 डिग्री कर्व से ज़्यादा शार्प नहीं कर सकते, और 10 डिग्री कर्व भी पाकिस्तान में कोई नहीं है, मैक्सिमम डिग्री 6 डिग्री कर्व है, उससे ज़्यादा शार्प हमारी कोई कर्व नहीं है। तो कर्व्स एक सीरियस बॉटलनेक होता है ट्रेन की स्पीड में, क्योंकि स्टेट पे तो स्पीड का इशू नहीं है, स्पीड का इशू आता है कर्व के ऊपर जाके। तो गेज का ताल्लुक से जी नहीं एब्सोल्युटली नहीं, फ्यूल कंजम्पशन का ताल्लुक गेज से बिल्कुल नहीं है। फ्यूल कंजम्पशन का ताल्लुक है आपके हालिंग लोड से, कि आप लोड कितना खींच रहे हैं, ठीक है। 2 चीज़ें आप उसमें सोच लें, एक तो हालिंग लोड कितना है, और दूसरा जो ट्रेन का साइज़ है ना, जो एयर प्रेशर को फेस कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, वो क्या है। साइज़ बड़ा होगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है ना। नहीं बड़ा नहीं होता, आमतौर पे साइज़ तकरीबन ये सेम ही रखे हुए हैं फॉर दैट मैटर। तो एक ज़माने में प्रोग्राम था पाकिस्तान का कि ये बड़ी कोचेस ख़रीद लें, और आप अब जब मूव करेंगे ना रेलवे पे मुख्य जगह पे, तो बस स्टेशन में आपको प्लेटफॉर्मों के एजेस टूटे हुए नज़र आएंगे। तो एक ज़माने में जब कॉन्सेप्ट चला था, तो जो मैं चाक से अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, यही लिख सकते हैं।
ये प्लेटफॉर्म है फर्जा, ठीक है, ये ट्रेन खड़ी है, ये ट्रैक है। तो एक ज़माने में प्रोग्राम बना के इसको हम चौड़ा करें, तो जो प्लेटफॉर्म उस ज़माने में बनाया गया ना, उनकी शक्ल ये बनाई गई। और ये हमारा एग्जिस्टिंग गेज था। पर्पज़ ये था कि जब हम बड़ी कोच लाएंगे इसको हम तोड़ देंगे। लेकिन ये बस किसी का आइडिया था जो चला नहीं, क्योंकि दुनिया में मेरे ख्याल कहीं भी ये कामयाब नहीं हुआ इस तरह से। साइज़ ठीक है, यूनिवर्सल किस्म का साइज़ है, तो इसमें इशू था। किसका? नहीं, मैंने बताया ना कि जो फैसला किया गया था ना उस वक्त गेज का, वो कोचेस की कैपेसिटी को सोच के नहीं किया गया था। वो तो इसलिए किया गया था कि ट्रेन वो हो जो ओवरटर्न ना हो। उन्होंने समझा कि यहाँ पे हवा तेज चलती है तो ओवरटर्न हो जाएगी, अदरवाइज स्टैंडर्ड गेज बनना था। तो उसका मतलब है, अगर आप कोच के साइज़ के हिसाब से देखें तो उसका कोई एडवांटेज एज इट इज़ नहीं लिया, किसी ने भी नहीं लिया। लेना चाहते तो कितना ले लेते, मतलब फुट 2 फुट और बढ़ा लेते, लेकिन उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था। और फिर आप जिस होता है ना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हट जाते हैं आप एक तरह से, तो चीज़ें बन जाती है। तो स्टैंडर्ड गेज की हद तक यस, मीटर गेज और नैरो गेज की छोटी होती है। मीटर गेज नैरो गेज पाकिस्तान में ऑब्सोल्यूट होगी, दुनिया में तो है, दुनिया में तो है, चल रही है, पाकिस्तान में ऑब्सोल्यूट होगी। एनी अदर क्वेश्चन भी? अच्छा, ये जस्ट गेज करो कि मैं समझता हूँ गेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना आप सबका बड़ा ज़रूरी है। स्टैंडर्ड गेज 4 फुट 8.5 इंच, ये जो मोस्टली चाइना, यूरोप, यूएसए, एंड 62%, ये फिगर ज़रा मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ है, बाद का 56 लिखा है, बाद 60 लिखा है, 64 भी है, बट एक फिगर है 62% ऑफ द वर्ल्ड रेलवेज स्टैंडर्ड गेज पे हैं। ब्रॉड गेज 2 हैं दुनिया में, एक रशियन गेज है और एक इंडियन गेज है। रशियन गेज एग्जैक्टली 5 फुट है और वो भी 9% के करीब है। रशिया बहुत बड़ी रेलवे है, ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स उसमें सारी शामिल हो जाती हैं। और ये इंडियन गेज है नीचे, ये भी ये भी 9% है। तो मीटर गेज अभी भी है, जापान में मीटर गेज भी खासा है। उन्होंने अपनी 2 ही रेलवे बनाई हैं, या वो शिनकानसेन हाई स्पीड या उनकी मीटर गेज रेलवे है। कैप गेज ये कुछ मुल्कों में अभी भी बाकी 8%। कैन यू इमेजिन के जो गेजेस हैं, डिफरेंट गेजेस, उनकी तादाद भी मोर देन 60 है, डिफरेंट। बाज़ मिनरल लाइन्स जो बनती हैं माइंस में से निकलती हैं, उनके चूँकि सिर्फ लिमिटेड होता है उनकी मूवमेंट, उन्होंने माइन से निकलना है और पोर्ट तक जाना है या किसी तक जाना है, तो वो डेडिकेटेड लाइन्स बनाते हैं, उस पर कोई और चीज़ नहीं चलनी होती, तो वो फिर बड़ी लाइन्स भी बना लेते हैं। और उस पर जो रोलिंग स्टॉक वो रखते हैं वो भी बड़े साइज़ का कर लेते हैं उसमें, तो वो फिर स्पेशल ही है, वो कहीं और नहीं चलता। तो वो गेजेस डिफरेंट मुल्कों ने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट गेजेस भी किए हैं। और इसमें जो होता है सियाहत में और इस किस्म की चीज़ों में मुख्तलिफ गेजेस चल जाते हैं, बट दीज आर द गेजेस जो कि बेसिकली मोस्टली इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें। किसको? रेल को? रेल को मैं आगे आता हूँ, बताता हूँ आपको, क्वेश्चन है कि क्लासीफाई करते हैं। रेल की बात करें ना, मैं बताता हूँ आपको, उसको गेज के साथ तो नहीं किया जाता। देखो रेल तो जो भी साइज़ की होगी, गेज इज़ अ डिस्टेंस, तो अब बड़ा छोटा कर दें उसके साथ किया, तो मैं बताता हूँ आपको।
अब ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्रैक क्या है, रेल, दिस इज टाइप रेट के फास्टनिंग हम बोलते हैं यहाँ, स्लीपर, बैलेस्ट, सब बैलेस्ट एंड सब ग्रेड। सब बैलेस्ट पाकिस्तान रेलवे में इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ था, नहीं होता था। डबल लाइन जिसका जिक्र हमारे सामने किया जब हमने बनाई, उसमें फर्स्ट टाइम हमने सब बैलेस्ट डाला, जो कि दुनिया में अब हर जगह पे है, तकरीबन कॉमन है और बड़ा यूज़फुल होता है उस लिहाज से। इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है, जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसकी ये स्लोप आप नजर आ रहा है आपको, ये स्लोप 1/40 का स्लोप हम कहते हैं इसको, 1/40 का स्लोप देते हैं। और ये क्यों देते हैं? चूँकि ये पानी आता है, बारिश होती है, ये बैलेंस है, इसमें से निकलता है, तो हम कोशिश होती है कि ज़मीन में अब्जॉर्ब ना हो। अब्जॉर्ब होगा तो वो ख़राब करे पगलमेंट, तो इस स्लोप इसे देते हैं कि वो साइडों से फिर ड्रेन आउट हो जाता है। ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि इस पैरामीटर का रेलवे में आने के 10 साल बाद तक मुझे पता नहीं था। ये भी एक पैरामीटर है हमारा जानने के लिए। तो हमारे एक उस वक्त FTIR थे, उन्होंने तो मेरे से क्वेश्चन ही कर लिया, मुझे नहीं जवाब आता था। तो उसके बाद पता लगा कि देव एक पैरामीटर, लेकिन बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन। नई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो ये चीज़ उसमें करनी होती है। टाइप्स ऑफ रेल्स, सबसे पुरानी जो टाइप है वो है ये डबल हेडेड, फिर उसके बाद एक फुल हेडेड आई, और फिर इस वक्त ओनली इट इज़ फ्लैट फुटेड रेल। डबल हेडेड क्यों आई थी? इनिशियली कॉन्सेप्ट ये था कि दोनों हेड इस्तेमाल किए जाएं। पहले एक हेड इस्तेमाल किया जाए ऊपर से, और जब वो वेयर आउट हो जाए दूसरा इस्तेमाल किया जाए ताकि लाइफ रेल की बढ़ जाए। लेकिन ये इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, चूँकि जो नीचे वाला पोर्शन था इसको मेंटेन करना, होल्ड करना ये तो मुश्किल हो गया। और दूसरा ये हुआ कि जब उसको ऊपर वाले को वेयर आउट हो गया तो नीचे वाले को जब देखा गया तो वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। ख़राब हो जाता है विद द वेदर, विद द मूवमेंट, इस काबिल नहीं रह जाता था कि वो हो। ये बुल हेडेड रेल्स हमारी सर्विस के दौरान भी बाज़ हमने रेलवे यार्ड में देखी हैं, पड़ी हुई पुरानी। बुल हेडेड का कॉन्सेप्ट ये था कि जो हेड है उसका मैक्सिमम यूज़ होता है, वेयरिंग उसी की ज़्यादा होती है, तो उसको हैवी कर दिया जाए ताकि वो लंबे अरसे चले। लेकिन अगेन इसमें भी प्रॉब्लम आया फिक्सिंग का, स्टेबिलिटी का, और ये कॉन्सेप्ट भी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं चला। इसकी एकेडमिक वैल्यू है इस हद तक कि आपको पता हो कि ये चीज़ें बनती रही हैं, बट अब ये नहीं है। तो फाइनली जो शेप अब एक्सेप्टेड है या वो ये फ्लैट फुटेड रेल है। अब फ्लैट फुटेड रेल में बहुत सारे सेक्शंस हैं। उसमें फ़र्क क्या होता है सब में कि ये विड्थ कितनी होगी, डेप्थ कितनी होगी, हाइट कितना होगा, हाइट कितनी होगी। इसके डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट डिज़ाइन किए हुए हैं। मतलब हम जो आमतौर पे आजकल अडॉप्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं UIC का स्टैंडर्ड। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? UIC का स्टैंडर्ड अडॉप्ट करते हैं। UIC रेल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़ का स्टैंडर्ड है जो हम यूज़ करते हैं। इनिशियली हम BSS इस्तेमाल करते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशंस का। हम एरिया, AREA, अमेरिकन रेलवे इंजीनियरिंग एसोसिएशंस, इनके स्टैंडर्ड्स भी हम इस्तेमाल करते रहे हैं डिफरेंट टाइप्स पे। ये हमारी जो रेल, जब हमने ये पाकिस्तान बना तो मोस्ट ऑफ द टाइम रेल जो थी वो 90R थी। 90R जो डिफरेंट रेल थी, R 75R 75 87 90 BSS। उसके बाद 60 पाउंड रेल थी। यहाँ पे क्या है कि
90 क्या चीज़ है, 75 क्या चीज़ है, जो क्वेश्चन किसी ने किया था और आपको मुझसे मोस्टली को पता भी होगा. It is the weight of the rail per yard if it is in pounds. 90 R means कि 90 pounds per yard. 75 means 75 pounds per yard. अब ये इसके डिफरेंट जो वर्जन हैं वो क्रॉस सेक्शन का डिफरेंट डिज़ाइन है. ये 1887 में एक रेल किसी ने बनाई, उसने उसको नाम 75-87 रख दिया. इस तरह मुख्तलिफ हैं, न्यूमरस हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इस्तेमाल हुई हैं वो मोस्टली ये हुई हैं. मैं बता रहा हूँ ना, वो बताने लगा हूँ. दिस वाज वन जो कि जब हुई ना पाकिस्तान बनाई उस वक्त मोस्टली ये रेल, और ये ब्रिटिश भी आई थी, और ये इंडिया में कंपनी है टाटा आयरन वर्क्स, उनकी बनी हुई रेल थी. अर्ली 60s में जब रेलवे का अपग्रेड, तो 60s का एरा ऐसा है जिसमें देखो पाकिस्तान के हर शोबे में तरक्की हुई है बहुत, और रेलवे में भी उसी ज़माने में सही मानने में जिस तरह सॉलिड डेवलपमेंट उसी ज़माने में. उस वक्त हमने अडॉप्ट की 100 आरी. आरी जो लफ्ज़ है ये निकला है उन एरिया से, अमेरिकन रेलवे इंजीनियरिंग एसोसिएशन, इनका ये क्रॉस सेक्शन था, और इसे क्रॉस सेक्शन ये हमने अडॉप्ट की और ये वाइडली हमने इस्तेमाल की. मेन लाइन हमारी मोस्टली जो थी ना वो फिर इसी के ऊपर चली. अभी काफ़ी पोर्शन इस पे है, लेकिन अब इसमें जो हमें प्रॉब्लम आई, ये भी मैंने मौके में हैंडल करने का, इस रेल का एक इशू है 100 आरी का, कि ये इस्तेमाल हो रही थी अमेरिका में और पाकिस्तान में और शायद एक दो मुल्कों में, मोस्टली इस्तेमाल नहीं हो रही थी. दुनिया में जो रेल इस्तेमाल होनी शुरू हो गई थी वो शुरू हुई थी UIC की, UIC 54, UIC 60 एंड डिफरेंट. तो हमें ये प्रॉब्लम थी कि जब हम इसके बिड्स कॉल करते थे 100 आदि के लिए, तो ये नॉर्मल से महंगी आती थी, हमें महंगी पड़ती थी, क्योंकि ये हमारे लिए जो भी बिड लेता था वो स्पेशली हमारे लिए मैन्युफैक्चर करता था. जबकि ये 54 और 60 जो रेल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं वो कॉमनली बना रही थी, उनके पास उनके मोल्ड बने हुए थे, उनकी हर चीज़ बड़ी सेट थी उसके लिहाज से, तो वो उससे इकोनॉमिकल थी. तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन ये आया था कि हम हाउ टू चेंज इट एंड क्या चेंज करें, क्योंकि एक तो हमारे पास ऑप्शन ये थी कि हम ज़्यादा मेन लाइन की बात करते हैं कि हम स्ट्रेट अवे 60 पे चले जाएं, और या 54 पे जाएं, तो फिर क्यों जाएं, 60 पे क्यों ना जाएं. दिस वाज अ क्वेश्चन डेलिब्रेटेड. ये वेट फॉर यार्ड नहीं, अब ये है अपना kg पर मीटर मेट्रिक सिस्टम. ठीक है ना. क्या चीज़, ये 54 मीन्स 54 kg पर मीटर, वज़न उसका रेल का वज़न जो है ना, कि अगर आप 1 मीटर की रेल काट लेंगे तो उसका वज़न 54 kg होना चाहिए. क्लियर. अच्छा, उसमें ये जब ये फैसला हो रहा था तो एग्जिस्टिंग जो स्लीपर्स हैं हमारे कंक्रीट के, उसके ऊपर दे आर ऑल डिज़ाइन फॉर 100 आरी रेल्स, उन पर 100 रेल पड़ी हुई थी. स्लीपर के डिज़ाइन में जो बुनियादी चीज़ है ना वो ये फुट, इसको फिट होना है उस स्लीपर के ऊपर, इसके लिए स्पेशल जगह बनी होती है, इसमें फिट होता है. वो इसके साइज़ के हिसाब से हमारे स्लीपर बने हुए थे सारे. अब इसका जो फुट था UIC 60 का, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, बट आप किताबों में देखेंगे तो मिल जाएंगी, अब जरूरत होगी तो मैं भी दे दूँगा आपको. वो बड़ा था, और ये जो 54 थी
इसका जो फ़र्क था और हमारे 100i का वो सिर्फ 3 मिलीमीटर का फ़र्क था। पहली बात कि ये इट वाज मोर सूटेबल फॉर एग्जिस्टिंग स्लीपर्स। दूसरा ये था कि जब हम स्पीड की बात करते हैं तो दोनों रेलें UIC 54 UIC 60 दे आर फिट फॉर 160 किलोमीटर पर आवर, रादर इवन मोर देन दैट। सेम इज UIC 60। एक्सेल लोड की बात करें तो बोथ वर फिट फॉर 25 टन एक्सेल लोड। तो बट फिर यह है कि हमें लोग इसके ऊपर क्यों जाते हैं? अगर ये दोनों में ये फ़र्क नहीं है ज़्यादा तो वाई द पीपल अडॉप्ट UIC 60? रीज़न इज़ कि थोड़ी सी हैवी है, इसकी लाइफ कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है। आपको कोई रेल को रिप्लेस करना भी कोई आसान काम तो नहीं है, इट कॉस्ट मनी। तो जितनी फ्रीक्वेंटली आप बदलेंगे उतना आप ज़्यादा खर्चा करेंगे। तो UIC 60 कंपैरेटिवली ज़्यादा अरसे चल जाती है वीर एंड टियर की वजह से UIC 54 की निस्बत। लेकिन हमारे पास चॉइस ये नहीं था, तो हमने एग्जिस्टिंग स्लीपर्स के ऊपर नई रेल डालनी थी, तो फिर हमने UIC 54 को अडॉप्ट किया फॉर एग्जिस्टिंग ट्रैक। और एज ए पॉलिसी ये फैसला हमने किया कि जो नया ट्रैक बनेगा कभी पाकिस्तान में वो UIC 60 पे बनेगा। तो अब यही पॉलिसी इन वाला कि जो ML1 जो प्रोजेक्ट था CPAC का, उस पर जो हमने सारा डिज़ाइन किया था वो हमने UIC 60 पे किया हुआ था। उसने UIC 60 पे चलना है। जी दोबारा बोलें। नहीं देखें, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके लिए सबके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं कि गेज स्टैंडर्ड पे लें तो कैसे लाएंगे। थिंक अबाउट दी कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। जब आप स्टैंडर्ड गेज पे लाएंगे इसका मतलब है सारे स्लीपर आप बदलेंगे और तो बाकी छोड़ दें, सारे स्लीपर बदलेंगे 100%, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं सोच कंस्ट्रक्शन के लिहाज से देखें, फॉर मैंने जैसे मिसाल दी ना पिंडी और लाहौर की। अब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं लेटर से पिंडी में, अब एक दिन में तो पूरा नहीं बदला जाएगा ना, कम से कम 1.5-2 साल का तो प्रोसेस होगा इस पोर्शन में बदलने का, ठीक है। आपने पहले दिन बदला है 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर स्टैंडर्ड है, आगे ब्रॉड गेज है, ट्रेन तो नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 2 साल जितना अर्सा लगेगा उसको बदलने में आप ट्रेन बंद रखेंगे। कैन वी अफोर्ड दैट? और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ एक सेक्शन की बात की है, अगर आप पूरी रेलवे बदलेंगे तो इट इज़ अ मैटर ऑफ 5-6-7 ईयर्स। तो 5-6-7 ईयर्स आप ट्रेन बंद रखेंगे। और फिर तीसरी बात जो मैंने पहले की थी कि अगर हम बदलें भी सही, एडवांटेज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? कनेक्टिविटी तो अब भी है हमारी। देखो ना, वही तो बात है ना, कनेक्टिविटी हमने किससे करनी है? अगर इंडिया से करनी है तो इंडिया के साथ तो आपकी बनती है, जो कि फ्यूचर में नज़र आता है कि ज़्यादा उन्हीं के साथ चलेगा आपको। लेकिन अगर ईरान का तो कनेक्टिविटी है तो चल रही है। मैंने बताया ना कि बहुत सिंपल हो गया काम के 2 घंटे में अगर आप ट्रेन चेंज कर लेते हैं तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और ये देखो ना, मतलब दुनिया में डिफरेंट गेज, अब रशियन गेज है, ट्रेन चलती है चाइना से यूरोप तक जा रही है वाया रशिया, डिफरेंट गेजेस हैं लेकिन चल रही है। तो अब ये गेज जो है ना, उस सेंस में कोई बड़ा इशू नहीं रह गया। इसका जो एक एडवांटेज हम सोचते थे ना गेज का, जो आपके ज़हन में कभी आए कि चूँकि स्टैंडर्ड गेज दुनिया में ज़्यादातर मुल्कों में है, तो नेचुरली इसका जो रोलिंग स्टॉक है वो ज़्यादा कॉमनली मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है ना। अब हमारे कुछ लोगों का ख्याल ये होता था, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिशियंस हमारे आते थे, मिनिस्टर्स वगैरह, कि अगर हम सेकंड हैंड लेना चाहें रोलिंग स्टॉक तो हमें सस्ता मिल जाएगा। तो पहली बात ये कि सस्ता नहीं मिलता रोलिंग स्टॉक जो है ना, मतलब सेकंड हैंड गवर्नमेंट के लिए लेना किसी चीज़ को, क्योंकि सेकंड हैंड रोलिंग स्टॉक की या किसी भी चीज़ की स्पेसिफिकेशन बनाना बड़ा मुश्किल है। नए की तो स्पेसिफिकेशन बना लेते हैं कि ये चीज़ चाहिए। अगर आप एक चीज़ जो है, मतलब अगर आप गाड़ियाँ खरीद लें, कार खरीद लें, 2 एक ही मॉडल की, एक ही दिन खरीद लें, एक ही कंपनी की,
और 5 साल के बाद कहें कि उनकी वैल्यू सेम होगी तो उनकी वैल्यू सेम नहीं होगी। चीज़ें स्पेसिफिकेशन बदल जाती हैं सेकंड हैंड की, किस तरह इस्तेमाल हुई, कितनी वेरिएंट हुई, ये हुआ, तो उनकी सेकंड हैंड की स्पेसिफिकेशन बनाना बड़ा मुश्किल है। और गवर्नमेंट में अब जब ये स्पेसिफिकेशन का इशू आता है और ख़रीदने का आता है तो चीज़ें बड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं। आपने घटिया ख़रीद ली, आपने महंगी ख़रीद ली तो इतने में मिल सकती थी, तो ये प्रैक्टिकेबल ही नहीं था उस लिहाज से। और फिर दूसरी बात यही है कि जब आपने एक चीज़ ख़रीदनी है तो प्रॉपर लें उसको, वाई टू गो फॉर। और ये कि जी दुनिया शायद ले के बैठी हुई है ऑफ द शेल्फ आपके लिए रोलिंग स्टॉक के, आप फ़ौरन जाएंगे और वो आपको दे देंगे। बाद लोग कहते हैं मुफ्त मिल जाएगा आपको, मतलब ये बातें हवाई बातें जो है ना समटाइम हम करते हैं, बट ऑन ग्राउंड इनकी कोई हैसियत प्रैक्टिकल नहीं। उसमें मैं बताता हूँ, ये भी चले हमने अच्छे क्वेश्चन कर लिया। हम एक तजर्बा कर चुके हैं और कामयाब तजर्बा कर चुके हैं। NLC को जानते हैं, NLC एक इदारा है हमारा, नेशनल रजिस्टर। एट वन टाइम दे बिकेम क्वाइट इंटरेस्टेड कि वो ट्रेनें चलाएं अपनी, और ठीक था, दे फ्रेट मूवर्स हैं तो वो ट्रेनें चलाएं। और मैं उस हक़ में बहुत हूँ कि हमें प्राइवेट सेक्टर को ट्रेनें चलानी चाहिए अपनी। प्राइवेट सेक्टर चलाएगा तो इकोनॉमी आएगी, गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है हमारे स्पीकिंग। तो उन्होंने लोकोमोटिव खरीदे सेकंड हैंड। अब वो चूँकि फ़ौजी हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है, उनकी पूछना भी नहीं है, उन्होंने सेकंड हैंड ले लिए, कोरिया से लिए। और जो कोरियन लोकोमोटिव थे वो तकरीबन 30 साल चले हुए थे, लेकिन कंडीशन जनरली उनकी अच्छी थी, चूँकि उनकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी थी, कंडीशन उनकी अच्छी थी, बट देवर स्टैंडर्ड गेज लोकोमोटिव्स। तो एग्रीमेंट यही हुआ उनका कि भी ये लोकोमोटिव खरीदेंगे और कोरियन रेलवे उनकी बोगीज़ को रिप्लेस करके देगी, मॉडिफाई करके देगी फॉर ब्रॉड गेज। तो वो कोरियन रेलवे ने या उनके टेक्नीशियन ने करके दिया, और वो कामयाबी के साथ अभी तक चल रहा है। मतलब इट इज़ पॉसिबल कि आप स्टैंडर्ड गेज का रोलिंग स्टॉक लेके उसको ब्रॉड गेज पे चला लें। देखा ना, अगर आप कोचिस ले लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल सेकंड हैंड अगर लेनी है तो कोचिस ले लें आप, नीचे बोगी बदलनी है ना, सिंपल बोगी बदलना, बोगी आप स्टैंडर्ड गेज की ले लें, उसको पर फर्क पड़ेगी, बट बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता नहीं है, इसलिए फिर ये कुछ ज़्यादा चला नहीं, बट इट इज़ डूएबल, ये हो सकता है ऐसे। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, टाइम का हिसाब कितना है, टाइम कितना है सभी क्लास? क्लास 4 बजे तक 5 बजे तक? 4 बजे तक नहीं, वो बात है ना हमारे पास टाइम की कमी नहीं है। तो ये भी डर लगता है ना कि आप लोग बोर ना हो जाए ना, फिर जब स्टूडेंट्स बोर होना शुरू हो जाए ना तो फिर फोकस ही खत्म हो जाता है। फिर मैं कुछ और बात कर रहा होता हूँ, आप किसी और इवेंट पे सोच रहे होते हैं, तो वो भी कोई, अगर आपने 5 मिनट रेस्ट करना तो यू कैन डू दैट। 3:30 बजे, तो 10 मिनट रह गए फिर इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अब जो डिफरेंट कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं, ये मुमकिन है आप लोगों ने मोस्टली देखे होंगे कि जो एक चीज़ है स्लीपर, रेल की बात तो होगी, स्लीपर्स वुडन, स्टील, कास्ट आयरन, कंक्रीट, ये पाकिस्तान में मोस्टली यूज़ होता है। वुडन तो आपने देखे होंगे, एक सिंपल ब्लॉक ही होता है ना, लंबा सा सिंपल सा। स्टील स्लीपर ये है, ये चादर होती है मोटी, वो कर्व किया होता है, और इसको इस्तेमाल करते रहे, अब भी इस्तेमाल हो रही है, कम हो गई हैं, अब भी इस्तेमाल हो रही है। कास्ट आयरन का स्लीपर होता था, उसको CST9 बोलते थे, CST4 भी डिज़ाइन था, वो भी इस तरह का था जैसा ये है, टाई बार के साथ। ये ब्लॉक है कास्ट फाइबर का, ये ब्लॉक है कास्ट आयरन का, दरमियान में कनेक्टेड है टाई बार। तो वो स्लीपर भी बड़ा अर्सा चला है, यार्डों में अब भी आपको नज़र आ जाएगा।
नहीं कंपैटिबल नहीं, वुडन वुडन देखो, वुडन स्लीपर तो कंपैटिबल हो जाता है, वुडन का इशू नहीं है, ठीक है ना। नहीं, लेकिन उसमें भी एक मसला है ना कि वुडन स्लीपर के ऊपर आपने एक उसको रखना होता है फास्टनिंग, जिसको हम कहते हैं, जो रेल को और स्लीपर को आपस में जोड़ती है, उसका डिज़ाइन बदल जाता है। फॉर UIC 54 फॉर 100 RE वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो वो चेंज हो जाते हैं। वुडन फ्लेक्सिबल है, वुडन स्लीपर हम मानते थे सबसे अच्छा स्लीपर वुडन स्लीपर ही होता है, लाइट वेट होता है, हैंडलिंग आसान है, मैनुअली हैंडल हो जाता है। और लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि तो लकड़ी महंगी बहुत है, अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, और दूसरा है कि उसकी लाइफ कम होती है, उसकी 15 से 20 साल के बाद लकड़ी बदलनी पड़ती है, और बदलने का मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है ना, खासी पड़ती है वो भी। और उसके बाद अब लेटेस्ट जो है वो है कंक्रीट ही, जो दुनिया भर में कंक्रीट इस्तेमाल हो रही है। इसके भी 2 डिज़ाइन हैं, जो है इसको हम ट्विन ब्लॉक कहते हैं, ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लीपर है, और ये है मोनो ब्लॉक, इसको हम प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर कहते हैं। दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ कंक्रीट स्लीपर्स मोनो ब्लॉक है, ज़्यादातर दुनिया में ये इस्तेमाल किए। ये जो ट्विन ब्लॉक है ये ज़्यादातर फ्रांस, ये डिज़ाइन भी उनका ये फ्रांस का ही है, या उसके साथ जो कुछ अलाइड कंट्रीज़ थे या राज्य थे उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक तो दोनों में डिज़ाइन का फ़र्क है, तो डिज़ाइन का फ़र्क है ना, तो हाँ, इसकी शक्ल देखें, शक्ल देखें, दोनों की डिफरेंट चीज़ है। आप फ़र्क पूछ रहे हैं इस्तेमाल में, इस्तेमाल में फ़र्क पूछ रहे हैं ना, या कोई और मतलब क्वेश्चन आपका? इस्तेमाल में फ़र्क इस सेंस में तो नहीं है कि दोनों पे इस वक्त हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं। फ्रांस भी 300 किलोमीटर उस पर चला रहा है ट्रेन, और इस पे भी ट्रेन चल रही है, लिहाजा उस लिहाज से फंक्शन कोई फ़र्क नहीं है। हमारे यहाँ फ़र्क क्या पड़ा था, हमने पहले ये इस्तेमाल किया, हमारी फैक्ट्रियाँ जो थी, जो हमने लगाई कंक्रीट स्लीपर्स की, तो 2 फैक्ट्री हमारी ऐसी थी जो ये स्लीपर बनाती थी, और मेरे ख्याल में 3 फैक्ट्री ऐसी थी जो ये स्लीपर बनाती थी, ट्विन ब्लॉक। ट्विन ब्लॉक में बड़ा सीरियस प्रॉब्लम ये आया कि इनके जो टाई बार है ना, ये टाई बार कहते हैं, ये हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारा जो बैलेस्ट है उसमें मिट्टी बहुत ही है, पानी उसमें खड़ा हो जाता है, और ये विदिन 10 to 15 ईयर्स ये रस्ट होकर टूटनी शुरू हो जाती है, तो वो उनका जो फंक्शन है ना स्लीपर वाला वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा इसकी जो पैकिंग पावर है, पैकिंग हम कहते हैं, ये स्लीपर होते हैं ना, एक दूसरे से पैक करते हैं लाइंस को लेवल और रखने के लिए, वो आगे आपको बताएंगे कि पैकिंग क्या होती है। इसकी पैकिंग होल्डिंग इससे बहुत बेहतर है, ये इसमें मेंटेनेंस कंपैरेटिवली कम होती है, उसमें मेंटेनेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अब हम मतलब हमारी अब पॉलिसी यही है कि हम ट्विन ब्लॉक जो स्लीपर 1-2 फैक्ट्री बना रही हैं वही बना रही हैं, मज़ीद हम कन्वर्ट कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ को टू मोनोब्लॉक एज ए पॉलिसी। क्वेश्चन इसके बारे में स्लीपरों के? नहीं, इंटरेस्टिंगली दिस इज चीपर देन ट्विन ब्लॉक। नहीं, प्रीस्ट्रेसिंग तो वायर लगती है ना, टाई बार जो है ना ये महंगी पड़ती है हमें, 2 तरह से महंगी पड़ती है। एक तो फर्स्ट कॉस्ट जो है ना मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें भी ये महंगी है, क्योंकि इसमें बात यह है ना कि टाई बार भी स्टील है, इनके अंदर भी स्टील है, चार होता है ना उसके अंदर, तो स्टील का इसमें रोल काफ़ी ज़्यादा है। मोनोब्लॉक में सिर्फ वो प्रीस्ट्रेसिंग स्टील ही है, तो स्टील कम उसमें कंपैरेटिवली, तो फर्स्ट कॉस्ट में भी ये महंगी पड़ती है। और इन द लॉन्ग रन चूँकि ये 15 साल के बाद टूटने शुरू होते हैं, तो 15-20 साल के बाद आपको बदलने पड़ जाते हैं, जबकि ये अपनी लाइफ 30 साल 35 साल 40 साल अगर आप इसको अच्छा मेंटेन करें तो ये चलता है उस लिहाज से, इसकी स्टेबिलिटी, इसकी रनिंग बहुत बेहतर है उस लिहाज से। नहीं, ये यूनिफॉर्म तो ये एक पॉलिसी के तहत ना, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ये
स्टैंडर्ड है, मतलब पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे जो हमारा एक पैरामीटर था कि 2 फीट सेंटर टू सेंटर मेन लाइन पे, और उसमें हम जब लिखते हैं तो 1640 स्लीपर पर किलोमीटर तकरीबन, ये एक पॉलिसी थी। मैं बताता हूँ आपको ज्वाइंट कभी। और जो अब जो हमने इसमें सी पैक में जो स्टैंडर्ड लिया उसमें अब 1640 के बजाय 1667 1667 स्पेसिंग थोड़ी सी कम होगी। जितनी कम होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी या उसकी लोड डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो जाएगी। जॉइंट्स का जो है ना इशू, उस पर डेफिनेटली आके ना थोड़ी सी क्लोज करते हैं, उसके जॉइंट करीब जाते हैं उसको। लेकिन मेन लाइन पर तो हमारे जॉइंट्स अब एज फार एज पॉसिबल होते ही नहीं है, वेल्ड कर देते हैं। तो जब वेल्ड कर दें तो फिर जॉइंट का कोई रोल उस तरह से रह नहीं आता उस लिहाज से। तो बट ये ठीक है आपकी बात के जो जॉइंटेड ट्रैक है ना उसमें जॉइंट के ऊपर आगे थोड़ा सा स्लीपर वो कम कर देते हैं। और जो तीसरी चीज़ है उसमें यूनिफॉर्म स्पेसिंग रखने का जो एडवांटेज है कि अब दिन ब दिन, बल्कि हम तो स्टेल है, हम मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस पे हम जाते हैं। मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस पे मशीन आती है, मशीन इसकी पैकिंग करती है। मशीन को आप एक इंटरवल पे फिक्स कर देते हैं, वो उस इंटरवल पे हर स्लीपर की पैकिंग करती चली जाती है। उसको जब हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस 2 फीट सेंटर टू सेंटर है, तो हर 2 फीट सेंटर टू सेंटर के बाद वो पैकिंग करती चली जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर हम हर जॉइंट के ऊपर स्पेसिंग बदलते हैं तो फिर उसको फीड करना पड़ता है, वो बड़ा कम्पल्सन हो जाता है। बट ये तो चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस में जब आएंगे ना तो फिर ये फेस करेंगे कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है। ये फिर डिसीजन है जो आप लोगों ने फिर लेने होते हैं कि हाउ टू गो अबाउट इट, क्या करें, कैसे करें। और another 2-3 minutes। फास्टनिंग्स, ये फास्टनिंग छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुराने वुडन स्लीपर थे उन पर तो ये सिंपल ये लकड़ी का स्लीपर है, ये बेरिंग प्लेट लगी हुई है, उसके ऊपर ये 2 स्पाइक्स लगे हुए हैं जिनको नाम होता था डॉग स्पाइक्स। उनकी शक्ल ऐसी बनी होती थी कि इसका नाम डॉग स्पाइक रखा होता था। लेकिन इसके और भी डिज़ाइन थे मुख्तलिफ, डॉग स्पाइक भी था। और इसका प्रॉब्लम हाई स्पीड के लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा, इसके अब जो डिफरेंट कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं, ये मुमकिन आप लोगों ने मोस्टली देखे होंगे कि जो एक चीज़ है स्लीपर रेल की बात तो होगी। स्लीपर्स वुडन, स्टील, कास्ट आयरन, कंक्रीट, ये पाकिस्तान में मोस्टली यूज़ होते हैं। वुडन तो आपने देखे होंगे, एक सिंपल ब्लॉक ही होता है ना, लंबा सा सिंपल सा। स्टील स्लीपर ये है, ये चादर होती है मोटी, वो कर्व किया होता है और इसको इस्तेमाल करते रहे। अब भी इस्तेमाल हो रही है, कम हो गई हैं, अब भी इस्तेमाल हो रही है। कास्ट आयरन का स्लीपर होता था, उसको CST9 बोलते थे, CST4 भी डिज़ाइन था। वो भी इस तरह का था जिस तरह ये है टाई बार के साथ। ये ब्लॉक है कास्ट फाइबर का, ये ब्लॉक है कास्ट आयरन का, दरमियान में कनेक्टेड है टाई बार। तो वो स्लीपर भी बड़ा अर्सा चला है, यार्डों में अब भी आपको नज़र आ जाएगा। नहीं कंपैटिबल नहीं, वुडन देखो, वुडन स्लीपर तो कंपैटिबल हो जाता है, वुडन का इशू नहीं है, ठीक है ना। नहीं, लेकिन उसमें भी एक मसला है ना कि वुडन स्लीपर के ऊपर आपने एक उसको रखना होता है फास्टनिंग, जिसको हम कहते हैं, जो रेल को और स्लीपर को आपस में जोड़ती है। उसका डिज़ाइन बदल जाता है। फॉर UIC 54 फॉर 100 RE वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो वो चेंज हो जाते हैं। वुडन फ्लेक्सिबल है, वुडन स्लीपर हम मानते थे सबसे अच्छा स्लीपर वुडन स्लीपर ही होता है। लाइट वेट होता है, हैंडलिंग आसान है, मैनुअली हैंडल हो जाता है। और लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि तो लकड़ी महंगी बहुत है, अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी। और दूसरा है कि उसकी लाइफ कम होती है, उसकी 15 से 20 साल के बाद लकड़ी बदलनी पड़ती है, और बदलने का मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है ना, खासी पड़ती है वो भी। और उसके बाद अब लेटेस्ट जो है वो है कंक्रीट ही, जो दुनिया भर में कंक्रीट इस्तेमाल हो रही है। इसके भी 2 डिज़ाइन हैं, जो है इसको हम ट्विन ब्लॉक कहते हैं, ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लीपर है।
और ये है मोनोब्लॉक, इसको हम प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर कहते हैं। दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ कंक्रीट स्लीपर्स मोनोब्लॉक है, ज़्यादातर दुनिया में ये इस्तेमाल किए। ये जो ट्विन ब्लॉक है ये ज़्यादातर फ्रांस, ये डिज़ाइन भी उनकी है फ्रांस का ही है, या उसके साथ जो कुछ अलाइड कंट्रीज़ थे या अटैचमेंट थी उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक तो दोनों में डिज़ाइन का फ़र्क है, देखो डिज़ाइन का फ़र्क है ना, तो इसकी शक्ल देखें, शक्ल देखें, दोनों की डिफरेंट चीज़ है। आप फ़र्क पूछ रहे हैं इस्तेमाल में, इस्तेमाल में फ़र्क पूछ रहे हैं ना, या कोई और मतलब क्वेश्चन आपका? इस्तेमाल में फ़र्क इस सेंस में तो नहीं है कि दोनों पे इस वक्त हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं। फ्रांस भी 300 किलोमीटर उस पर चला रहा है ट्रेन, और इस पे भी ट्रेन चल रही है, लिहाजा उस लिहाज से फंक्शन कोई फ़र्क नहीं है। हमारे यहाँ फ़र्क क्या पड़ा था, हमने पहले ये इस्तेमाल किया। हमारी फैक्ट्रियाँ जो थी, जो हमने लगाई कंक्रीट स्लीपर्स की, तो 2 फैक्ट्री हमारी ऐसी थी जो ये स्लीपर बनाती थी, और मेरे ख्याल में 3 फैक्ट्री ऐसी थी जो ये स्लीपर बनाती थी ट्विन ब्लॉक। ट्विन ब्लॉक में बड़ा सीरियस प्रॉब्लम ये आया कि इनके जो टाई बार है ना, ये टाई बार कहते हैं। ये हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारा जो बैलेस्ट है उसमें मिट्टी बहुत ही है, पानी उसमें खड़ा हो जाता है, और ये विद इन 10 to 15 ईयर्स ये रस्ट होकर टूटनी शुरू हो जाती है। तो वो उनका जो फंक्शन है ना स्लीपर वाला, वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा इसकी जो पैकिंग पावर है, पैकिंग हम कहते हैं, ये स्लीपर होते हैं ना, नीचे से पैक करते हैं लाइंस को लेवल और रखने के लिए, वो आगे आपको बताएंगे कि पैकिंग क्या होती है। इसकी पैकिंग होल्डिंग इससे बहुत बेहतर है। ये इसमें मेंटेनेंस कंपैरेटिवली कम होती है, उसमें मेंटेनेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अब हम मतलब हमारी अब पॉलिसी यही है कि हम ट्विन ब्लॉक जो स्लीपर 1-2 फैक्ट्री बना रही हैं वही बना रही हैं, मज़ीद हम कन्वर्ट कर रहे हैं फैक्ट्रीज को टू मोनोब्लॉक एज ए पॉलिसी। क्वेश्चन इसके बारे में स्लीपरों के? नहीं, इंटरेस्टिंगली दिस इज चीपर देन ट्विन ब्लॉक। नहीं, प्रीस्ट्रेसिंग तो वायर लगती है ना, टाई बार जो है ना ये महंगी पड़ती है, 2 तरह से महंगी पड़ती है। एक तो फर्स्ट कॉस्ट जो है ना मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें भी ये महंगी है, क्योंकि इसमें बात यह है ना कि टाई बार भी स्टील है, इनके अंदर भी स्टील है, चाल होता है ना उसके अंदर, तो स्टील का इसमें रोल काफ़ी ज़्यादा है। मोनोब्लॉक में सिर्फ वो प्रीस्ट्रेसिंग स्टील है, तो स्टील कम है उसमें कंपैरेटिवली, तो फर्स्ट कॉस्ट भी में भी ये महंगी पड़ती है। और इन द लॉन्ग रन चूँकि ये 15 साल के बाद टूटने शुरू होते हैं, तो 15-20 साल के बाद आपको बदलने पड़ जाते हैं, जबकि ये अपनी लाइफ 30 साल 35 साल 40 साल अगर आप इसको अच्छा मेंटेन करें तो ये चलता है उस लिहाज से। इसकी स्टेबिलिटी, इसकी रनिंग बहुत बेहतर है उस लिहाज से। नहीं, ये यूनिफॉर्म है, तो ये एक पॉलिसी के तहत ना जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ये स्टैंडर्ड है। मतलब पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे, जो हमारा एक पैरामीटर था कि 2 फीट सेंटर टू सेंटर मेन लाइन पे, और उसमें हम जब लिखते हैं तो 1640 स्लीपर पर किलोमीटर तकरीबन ये पॉलिसी थी। मैं बताता हूँ आपको ज्वाइंट करनी है। और जो अब जो हमने इसमें सी पैक में जो स्टैंडर्ड लिया, उसमें अब 1640 के बजाय 1667 1667 स्पेसिंग थोड़ी सी कम होगी। जितनी कम होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी या उसकी लोड डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो जाएगी। जॉइंट्स का जो है ना इशू, उस पर डेफिनेटली आके ना थोड़ी सी क्लोज करते हैं उसके जॉइंट करीब जाते हैं उसको, लेकिन मेन लाइन पर तो हमारे जॉइंट्स अब एज फार एज पॉसिबल होते ही नहीं है, वेल्ड कर देते हैं। तो जब वेल्ड करते हैं तो फिर जॉइंट का कोई रोल उस तरह से रह नहीं आता उस लिहाज से। तो बट ये ठीक है आपकी बात के जो जॉइंटेड ट्रैक है ना, उसमें जॉइंट के ऊपर आगे थोड़ा सा स्लीपर को कम कर देते हैं,
और जो तीसरी चीज़ है उसमें यूनिफॉर्म स्पेसिंग रखने का जो एडवांटेज है कि अब दिन ब दिन, बल्कि हम तो स्टेल है, हम मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस पे हम जाते हैं। मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस पर मशीन आती है, मशीन इसकी पैकिंग करती है। मशीन को आप एक इंटरवल पे फिक्स कर देते हैं, वो उस इंटरवल पे हर स्लीपर की पैकिंग करती चली जाती है। उसके जो हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस 2 फीट सेंटर टू सेंटर है, तो हर 2 फीट सेंटर टू सेंटर के बाद वो पैकिंग करती चली जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर हम हर जॉइंट के ऊपर स्पेसिंग बदलते हैं तो फिर उसको फीड करना पड़ता है, वो बड़ा कम्बरसम हो जाता है। बट ये तो चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस में जब आएंगे ना तो फिर ये फेस करेंगे कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है। ये फिर डिसीजन है जो आप लोगों ने फिर लेने होते हैं कि हाउ टू गो अबाउट इट, क्या करें, कैसे करें।